स्वागत है। इस 2 दिन के प्रोग्राम के लिए हमने 6 फैकल्टीज ली हैं, 5 नेशनल फैकल्टीज हैं और 1 इंटरनेशनल। नेशनल फैकल्टी भी इंटरनेशनल रिप्यूट की है। दीज आर द बेस्ट फैकल्टी वी कुड फाइंड इन द कंट्री। 2 दिन का प्रोग्राम है, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन आज के प्रोग्राम में शुक्लीकर साहब मेंबर इंजीनियर नहीं आ पाएंगे और कुछ और भी सीनियर ऑफिसर्स, क्योंकि सिक्योरिटी एमओ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनकी कोई मीटिंग है और टाइम क्लैश हो गया। 11 बजे यहाँ भी है, 11 बजे वहाँ है, बट दे विल ज्वाइन लेटर। तो मैं एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ और एनवीडिया को थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने CBIP को ये मौका दिया। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल। सो मिस कल्पना, प्लीज गो अहेड। Namaskar, a very good morning, distinguished guests, resource speakers, esteemed participants, ladies and gentlemen. My name is Kalpana Adhikari from Central Board of Irrigation and Power. I would like to extend my best wishes to all of you and hope all of you have a great year ahead and stay safe, stay healthy in this pandemic situation. On behalf of CBIP, we extend a hearty welcome and sincere gratitude to the resource speakers, Mr. Naresh Sharma, Dr. Riya Bhaumik, Dr. G.V. Ramana, Mr. Govind Raj, Mr. Peter Banzev, and Dr. Bandi Vidya Narayana. We also welcome Mr. Aditya Kumar Dinkar, Secretary CBIP, Dr. G.V. Patel, Director WR, and other esteemed guests and dignitaries. We convey our sincere thanks to all professionals for their time and presence for this 2 days virtual training session. The soils at construction sites are not always totally suitable for supporting physical infrastructure such as building, bridges, highways, tunnel, and dams. Under these conditions, soils needs to be treated using ground improvement techniques. Similarly, specific types of soil improvement techniques are required in the case of expensive soils and collapsible soils and in the case of earthquake prone areas. The virtual training session on the topic design and construction of ground improvement techniques like digraph wall, slurry wall, pile foundation addresses various ground improvement techniques along with principal design issues and construction procedures. Ladies and gentlemen, now may I invite. Just a minute, Kalpana madam. Sir, I think Mr. D.K. Sharma has joined. Sharma साहब join किया सर आपने? Yes sir, join कर लिया. Okay, thank you sir. This I Hello. wanted to. Okay, आवाज sir. आ रही? Okay, welcome Hello. sir. Welcome. आ रही है सर. Ladies and gentlemen, now may I invite today's first resource speaker, Mr. Naresh Sharma, for the presentation. Let me introduce briefly about the speaker. Mr. Naresh Sharma is a civil engineer, worked in Chamera Stage 1, Uri Stage 1, Nathapa Jhakri HEP, Largi HEP, Jammu Udhampur Rail Link Tunnel number 8, Mumbai Pune Expressway Twin Tunnels. He worked as a technical service manager from 2001, MBT, Desugua, MA, BASF, and now in MBS. Now I request Mr. Naresh Sharma to make the presentation. Over to you, sir. Thank you, madam. आवाज तेज करना. Let me share. Can you see my screen? Yes. Yes, sir. Yes. Yes. Okay. Good morning to all of you. As Kalpana has given the short introduction about me. So my name is Naresh Sharma. Presently, I am working with Master Builder Construction Chemical Group. And I'm in this company from last 21 years. Before joining this company, I was working on the different sites in different hydropowers, and where we have got the experience from the sites, and same thing we will going to share with you. So NBCC group, we are having more than 30,000 customer worldwide. We are having more than 7,500 employees worldwide. And if you are talking about the worldwide, we are having a manufacturing side
more than 120, and we people are operating from the 60 countries. And if you're talking about my company, this company started in 1909, and if you'll see on the screen, so the acquisition took place in 2006, then 13 and 2020, and in 21. So presently now we are calling Master Builder Construction Chemical, Master Builder Solution. Earlier we was BASF. It was also a very big German company. And now why I was showing this slides that we are this much of customer employees, because we people are giving the best service to this civil industry. So that is why I have shown this slide that we people are working in more than 60 countries, right? So NBCC Group offers a variety of solutions for different applications, meeting diverse needs of the construction industry. We are talking about commercial, infrastructure, or residential. So everywhere we people are having construction chemicals for this industry. So when we are talking about the civil industry, and especially into the hydropowers, then of course dams are coming. So what is this dam? First we have to understand that this is a structure built across the river or stream to store the water. Or water can be used later on for the human consumption, maybe for the drinking purpose, maybe for the irrigation purpose, or we can generate electricity. This store water can be used when there is no rain. So that is why we people are making dams. So it is very clear. Now, if you're talking about the construction of the dam, when the river is flowing, so how we have to start the dam? So first, the area which need to consolidate for the foundation of the dam, we need a curtain grout. So what is this curtain grout? It is a barrier that protects the foundation of the dam from seepage and can be made during initial construction, for during or after repair. It can be used to strengthen the foundation and contain spills. तो जनरली क्या होता है जब हम डैम्स की बात करते हैं, जब जिस जगह पे हमने बनाना होता है, एक्चुअली जब वो रिवर जिस जगह पे फ्लो कर रहा होता है, वहां पर वो एरिया जो है वो इम्परवियस नहीं होता है, तो उसको हमने इम्परवियस बनाना होता है ताकि जब हम वाटर को स्टोर करें तो वो वाटर जो है जब उसका अपस्ट्रीम के ऊपर पानी जब भरता है तो एरिया जो है अपलिफ्ट ना हो और वो हमारे डैम का फेल्यूर ना हो. सो कर्टेन ग्राउट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए रो ऑफ वर्टिकल ड्रिल होल. उस जगह पे हम क्या करते हैं, जिस जगह पे हमारा बॉटम आ रहा होता है या इन्वर्ट आ रहा होता है, उस जगह पे ऊपर हमें जो है होल मारने पड़ते हैं और उनको एक प्रेशर ग्राउट के साथ हम भर देते हैं. These holes are drilled in the interval of each such a way that they cross each other's, create a curtain. एक पर्दे की तरह ये काम करते हैं और जो ग्राउट है उन होल्स के अंदर जाने के कारण उस एरिया में जो है जो वाटर पर्कुलेशन होने के चांसेस थे वो हम उनको नेग्लिजिबल कर देते हैं, कम कर देते हैं. So next question is coming into your mind that which code is followed for the dam curtain grouting. So IS 11-293-2018, the guidelines has given for the design of grout curtains for earth and rock-filled dam, masonry and concrete gravity dams. So question, why we can do a curtain grouting, why it is required? That I have said that to reduce the leakage under the dam, reduce uplift pressure and strengthen the jointed rock foundation. So now, so these are the why. So the process of grouting, filling the pores of cavity in soil or rock with a liquid form of material
to decrease the permeability and improve the shear strength by increasing the cohesion when it is set. So ये जो फिशर्स होती हैं, जो वायर्स होते हैं उस जगह के ऊपर, we have to fill those void with the help of some cements. So we can reduce the permeability and we can make it impervious. So water should not pass from the or pass under the beneath of this dam. So we need a grout. So next question sometime is coming that what could be the depth of the curtain grout? Actually, generally it is a thumb rule that we have to do a curtain grout up to the depth of total depth of the dam highest flood level, which we have designed H/3. So if we are talking about the Swedish guidelines for the dam safety, the height, if it is less than the 30 meter, they said that the curtain grout should not be deeper than the 20 meter. But the dam height, if it is more than 30 meter, should not be deeper than 2/3 of the dam height. So there are few parameters with the different countries they have made. So we have to go through those guidelines. So another question is coming into the consolidation grouting in dams. So why we need the consolidation? The grouting that is carried out within the rock mass to intend the filling of rock mass or discontinuities. ये क्या होता है जब हम डैम बना रहे होते हैं, उसकी ये बॉटम का भी हो गया, साइड्स की जो रॉक है कई बार वो वीक होती हैं, तो उन रॉक को हमें जो है कंसोलिडेट करना पड़ता है. अगेन वी हैव टू बी ड्रिल दी होल्स और उसके अंदर हमें जो है सीमेंट ग्राउट के साथ उसको फिलअप करना है ताकि उन वॉइड्स को कम किया जा सके और वो जो फिशर्स हैं उनको भरा जा सके ताकि पानी उसमें से परकुलेट ना हो. तो इसके लिए क्या होता है, दिस प्रोसीजर came with the drilling of grout injection hole into the rock for the purpose of intercepting fissures or cavity. तो हर जगह पे सिर्फ यही हम बात कर रहे हैं आज, ड्रिलिंग एंड ग्राउटिंग. ये जो प्रोसीजर है ये इस जगह पे किसी भी जगह के ऊपर जिस जगह पे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं जो वीक एरिया रहता है, जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होती है, तो वहाँ पे हमें जो है ये इंजेक्शन करना पड़ता है, ग्राउट करना पड़ता है, जिसके कारण उस एरिया को हम इम्प्रूव कर सके अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, जो उसका डिजाइन है उसके हिसाब से उसको स्ट्रेंथ किया जाए. तो कर्टेन ग्राउट टेक्नोलॉजी जो है ऑलवेज हैज बीन वन ऑफ द मेन मेजर टू सीपेज प्रिवेंशन इन रीइंफोर्समेंट. तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो हम हाइड्रोलिकली जो ग्राउट बनाते हैं उस ग्राउट को जो है वो डैम बॉडी के अंदर, उस एरिया के अंदर, फाउंडेशन के अंदर उन एरियाज को भर दिया जाता है कि ताकि डैम के अंदर अपलिफ्ट या उसके अंदर इंक्लिनेशन ना हो सके. तो उसके लिए, उस पर्पस के लिए हम जो डैम के अंदर कर्टन ग्राउटिंग करते हैं. एक यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज फ्रॉम द कोल डैम. दिस डैम इज इन हिमाचल प्रदेश, इट्स 800 मेगावाट. I took this picture I think in 2007 or 2008. तो ये वाला अगर एरिया आप देख रहे हो तो इसके अंदर इस जगह पे डैम जहां आ रहा था उस जगह के ऊपर उन्होंने पहले इस एरिया को वॉश किया है. ये उस एरिया तक पहुंचे हैं जहां पे ये नेचुरल बेड था रिवर का. एंड इफ यू विल सी द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड देन यू विल फाइंड दैट दे हैव प्लेस्ड वन इक्विपमेंट. जो इस जगह पे राइट साइड के आप देख रहे हो तो ये वो वाला इक्विपमेंट है जिसके साथ यहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे थे, डीप होल मार रहे थे. इन सम एरिया इफ यू विल सी इन दिस एरिया, दिस इज फॉर द डी वाटरिंग. ये जो आसपास जो पानी रहता है, ये जो फिशर्स के जो बीच में जो चार्ज कर रहा था, उसको जो हम पंप लगाकर सारे पानी को निकालकर सेफर प्लेस के ऊपर, ये हमारा जो कॉफर डैम था इस साइड के ऊपर जो है ऐसे लोअर कॉफर डैम था, उस साइड के उस पानी को सारे को निकाल देते हैं. और वाला ये वाला जो एरिया रहता है, इस एरिया के अंदर हमने सीमेंट ग्राउट करना होता है, इन फिशर्स को भरना होता है. सो ये दिस इज द पिक्चर वेयर दे आर प्रिपेयरिंग द इनवर्ट फॉर द कर्टन ग्राउट. ये आप ये देख सकते हो, ये साइड्स के ऊपर इन्होंने सीढ़ियां लगाई हुई है इस एरिया के अंदर ड्रिलिंग करके,
और ऐसे ये बॉटम में इसको साफ कर रहे हैं। इस जगह के ऊपर ये सारा ये जो डी वाटर करेंगे ये फिशेस के अंदर जो पानी रहता है, और उसके बाद ड्रिलिंग करने के बाद इसके अंदर इन एरिया को ग्राउट करके स्ट्रेंथन किया जाएगा। तो अभी इसको यूज कैसे करते हैं, डैम्स के अंदर जो है ग्राउट यूज कैसे करना है, इसके लिए विल सी इन द पिक्चर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या है, जैसे ये हमारा ये डैम रहता है, ये एक तरफ जो हम अपस्ट्रीम की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे स्टोर्ड वाटर आ जाता है। तो जब स्टोर्ड वाटर होगा, जब ये वाटर जब राइज करता है तो वाटर हेड होगा, तो उसके कारण क्या होता है कि इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसके अंदर जो फिशर्स होते हैं तो वो पानी को जगह दे सकते हैं, और इसके कारण क्या हो सकता है, वाटर प्रेशर के कारण डैम हमारा अपलिफ्ट भी हो जाता है। तो उसके कारण इसीलिए हमने जो है ये देख रहे हो ड्रेनेज गैलरी है ये, और इसके थ्रू जो है, इससे पहले हमने होल मारे होते हैं, इसको एक कर्टन बना दिया होता है ताकि ये पानी जो है हमारा डैम के नीचे से सीप ना हो सके। और ड्रेनेज होल जो होते हैं वो हम अपने ड्रेनेज गैलरी के अंदर भी रखते हैं। इन फ्यूचर इफ सम इशू इज कमिंग देन वी कैन आल्सो drill the holes from the drainage gallery and we can fill the voids or fissures which are carrying the water to the downstream side. So ye grout curtains are used under the dams where the foundation would otherwise pass too much seepage or pass dangerous seepage. तो कुछ जगह के ऊपर अगर वर्ल्ड वाइड भी हम देखते हैं तो डैम का जो फेल्यूर हुआ था तो वहां पे जो सीपेज जो हुई थी वो इतनी ज्यादा हुई थी, जब वाटर क्रॉस किया है तो उसके कारण जो है ये डैम का जो फेल्यूर हो गया, और इसको जो टो बोलते हैं, जो बॉटम की तरफ से जब पानी निकला है तो डैम को जो फेल्यूर होने के रीजन यही रहा हुआ है। और इसी चीज को हमने सिर्फ रोकते हैं, इसको रोकने के लिए ही कर्टन ग्राउटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज द मेन एरिया वेयर वी हैव टू बी कंसोलिडेट बॉटम ऑफ द डैम। तो वाटर प्रेशर जब होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है कि डैम को जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ को टिल्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ये वाटर प्रेशर है। तो इस टिल्ट को रोकने के लिए हमें जो है इसकी जो टो के आसपास इस एरिया में इसलिए ग्राउट करते हैं ताकि ये एरिया जो है पूरा स्ट्रेंथन हो, और ये वाला एरिया इसलिए हम स्ट्रेंथन करते हैं ताकि कोई भी जो वाटर है वो सीप होके डैम के नीचे से ना निकल सके। सो दिस इज द मेन एम, कर्टन बनाने का जो मेन एम है टू रिड्यूस दी परमेबिलिटी, जो वाटर को रोकना है। अभी नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग दैट वी आर हैविंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ डैम्स, तो उसमें कैसे करना है। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जिस आर्च डैम, जब आर्च डैम रहता है तो उसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेस करना पड़ता है। सभी डैम जितने भी डैम रहते हैं उसके अंदर हमें जो है कर्टन बनाना पड़ता है, कर्टन ग्राउट बनाना पड़ता है, ताकि वो जो फाउंडेशन है दैट कैन डिजाइन फॉर दिस लोड, एंड सेकंड द परमेबिलिटी, उन पोर्स को उनको भर दिया जाता है ताकि जो पानी है वो सीप ना हो सके। सो दिस इज फॉर द आर्च डैम। तो इसी तरह से जितने भी डैम रहते हैं, जैसे बटर्स डैम रहता है उसके अंदर भी सेम यही है, उस ग्राउट करने के बाद उस एरिया को हमने भरना है। सेम ऐसे हमारे अर्दन डैम आते हैं, रॉकफिल डैम आते हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड एग्जांपल ऑफ फ्रॉम द टिहरी डैम, उसके अंदर भी सेम प्रोसेस से जो है उसको भरा गया है, रॉक फिल को किया गया। तो उसके अंदर क्या रहता है, मेन एक जो रहता है, जब हम ये बना देते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले जब फाउंडेशन बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो बीच में एक कोर डाला जाता है। ये कोर जो है इम्परवियस होता है, ये क्ले जो है इम्परवियस रहती है, इसको कॉम्पैक्ट किया जाता है और ताकि इसमें से पानी जो है सीप होके ना जा सके। सेकेंड, इसका अपना लोड रहता है डैम का, जो डिजाइन किया हुआ रहता है ताकि इस वाटर को वो रोक सके, जो रेजरवायर पीछे बनता है उसके थर्स्ट को रोक सके और ये अपलिफ्ट ना हो अपने सेल्फ वेट के साथ। तो ये रहते हैं रॉकफिल डैम एंड अर्दन डैम्स। अब क्वेश्चन आ जाएगा नेक्स्ट के, जब हम ग्राउट करते हैं तो कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे। देन दिस इज कॉल्ड जिन ग्राउटिंग। जिन ग्राउटिंग क्या होती है, ग्राउटिंग इंटेंसिटी नंबर। ये मेथड जो है ग्राउट का जो है, ये आई थिंक 1933 में जो है यूज किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सो अभी रिसेंटली थोड़ी सी इसमें अलग से डेवलपमेंट हुई है, दैट वी विल आल्सो डिस्कस। एंड व्हाट इज दिस मेथड, दिस इज अ सिंगल स्टेबल ग्राउट मिक्स फॉर द एंटायर ग्राउटिंग प्रोसेस। उसके अंदर जब हम ग्राउट की बात करते हैं देन वी सेड दैट वाटर सीमेंट रेशो, तो जो सीमेंट हमारा रहता है उसके साथ पानी को मिक्स करके जो ग्राउट बनाया जाता है,
उसको हम वाटर सीमेंट रेशो कहते हैं. एंड वी आल्सो यूज द सुपर प्लास्टिसाइजर टू इंक्रीज इट्स पेनिट्रेबिलिटी. तो इसके अंदर जो है आज की डेट में अभी जो है प्रेजेंटली हम लोग जो है प्लास्टिसाइजर्स हमारे पास आते हैं और इसको हम डिस्पर्सिंग एजेंट भी बोलते हैं. डिस्पर्सिंग एजेंट लिटिल बिट डिफरेंट देन द प्लास्टिसाइजर. बट जो हमारे पुराने डैम बनते होते थे, आई विल आल्सो शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड अबाउट द bentonite. तो bentonite डालते थे, but just I let you know that why we was adding the bentonite at that time, but presently yes we are not using the bentonite. तो ये जो study थी low to medium rate of grout pumping which leads to gradually increasing the pressure as the grout penetrates further into the rock mass. और दूसरा क्या होता है, to monitoring the pressure, flow rate, volume injected, penetrability, time to real time by PC ग्राफिक्स. ये वाली जो चीज है जो हम जब ग्राउट कर रहे होते हैं डैम के अंदर, तो हम ये रेट फ्लो रेट उसका कितना रहता है, एक होल के अंदर हमने वॉल्यूम कितना इंजेक्ट किया है और वो जो वॉल्यूम था उसकी वाटर सीमेंट रेशो क्या रही है, वो सब चीज हम नोट कर लेते हैं. तो टर्मिनेशन जो ग्राउट का जो हमने करना होता है, द प्रेशर वर्सेस टोटल वॉल्यूम डायग्राम intersects one of the curves of the limiting volume, limiting pressure or limiting grouting intensity as given by the selected GI. ये क्या करते हैं, जब हम डैम बना रहे होते हैं तो उससे पहले हमने जो है बोर होल मारते हैं. हम बोर होल के अंदर ये स्टडी की जाती है. क्या स्टडी करते हैं हम, लूजन वैल्यू. तो लूजन वैल्यू क्या चीज होती है, इट इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर इंजेक्टेड इनटू द सेगमेंट ऑफ द बोर होल अंडर द स्टडी प्रेशर. तो उसके अंदर हम क्या डिफाइन करते हैं, loss of water in liters per minute in per meter of borehole. और प्रेशर जो है वो 1 MP के करीब रहता है. और ये जो बोर होल होता है इसका अप्रोक्सीमेट जो जनरली जो डाया रहता है 76 mm के करीब रहता है, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसका जो बिट रहता है वो 76 mm का होता है. तो इसलिए जो होल जो हम मारते हैं, वर्टिकल जो होल रहते हैं वो 76 mm का होता है. और उस होल के अंदर हम ये वाटर टेस्ट करते हैं कि उसके अंदर जो वाटर है वो कितना पानी अंदर जा रहा है. ऑन दी बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट द फिशर्स आर बिग और स्मॉल. तो ये पानी जितनी जल्दी उसमें से सीप होकर अंदर जा रहा है, इसका मतलब वो फिशर जो है बड़ी है. अगर वो पानी जो है बहुत कम जाता है, प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब वो जो रॉक है उसके अंदर काफी टाइट है. तो ये लूजेंस वैल्यू कुछ दी रहती हैं, जैसे लेस देन 1 है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन वेरी लो. तो रॉक की जो डिसकंटिन्यूटीज जो है वो कंडीशन कैसी होगी, बहुत टाइट होगी, बहुत सॉलिड है रॉक. उसके अंदर फिशर्स जो है बहुत कम है, वर्ड्स बहुत कम है. अगर लूजन वैल्यू 1 to 5 आ जाती है तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से स्लो बट इट्स टाइट. सो जनरली जो रहता है जब लूजन वैल्यू को हम लेते हैं वो 3 के आसपास ले लेते हैं. तो उसके हिसाब से जब 3 हम अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है वो डैम की फाउंडेशन जो है उसको, उन फिशर्स को इतना टाइट कर लिया गया है कि उसमें से जो पानी निकलेगा वो हमारी जो कंडीशन जो हमने रखी हुई है उनको मीट करता है. और जैसे ही आप ये नीचे देख रहे हो 5 से लेके 15 तक लूजन आता है या 50 से 100 आ जाता है. इसके अंदर जो है, इसके अंदर ये हमें बताता है कि इसके अंदर बहुत बड़ी ओपनिंग है, इसके अंदर बहुत सारी जगह है, इसके अंदर बहुत सारे वॉइड है जिसके अंदर हमारा वाटर लॉस ज्यादा हुआ है. सो ये हमें लूजन वैल्यू से पता लगेगा कि जब हमने ग्राउट करना है, अगर जैसे जिस जगह के ऊपर जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से मीडियम है या हाई है तो उसके ऊपर जो है ओपनिंग काफी ज्यादा है, उसमें वॉइड काफी ज्यादा. तो देन हमारा जो मिक्स डिजाइन होता है लिटिल बिट वी कैन चेंज देयर. और मैं थोड़ा सा और आगे नेक्स्ट वाली स्लाइड के ऊपर शेयर करूंगा कि नाउअडेज वी पीपल आर यूजिंग द माइक्रोफाइन सीमेंट इनटू दिस ग्राउट्स. वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, I will also share with you. So permeability जो होती है 3 to 5 loosen is recognized as being quite acceptable to the concrete gravity dam where there is no risk of deterioration foundation due to this piping or dissolution. तो इसके अंदर पाइप होने का जो पाइपिंग बोलते हैं, जिसके अंदर जो जब हम पानी भरते हैं तो पानी उस डाउनस्ट्रीम की तरफ को डैम के नीचे से ना निकले. तो उसको अगर ये 3 to 5 इसको हम अचीव कर लेते हैं लूसेंस को, that is acceptable. In case of the former, all the drain holes from the gallery have
फिल्टर लाइनिंग प्रिंसिपल्स। तो ये क्या होता है, जब ये हमारा डैम बन जाता है उसके अंदर जो हमारी इंस्पेक्शन गैलरी रहती है, ड्रेनेज गैलरी जो रहती है, दो पर्पस के लिए है। एक तो ये जो हमने होल्स जो हमारे होते हैं वो ड्रेनेज गैलरी के अंदर रहते हैं, एंड वहाँ पे हमारे जो एक होल रहते हैं जिसके अंदर हम उसके अंदर जो वाटर प्रेशर रहता है, वी कैन आल्सो मेजर द वाटर प्रेशर, उसके नीचे कितना आ रहा है। और उस इन फ्यूचर अब सब कम प्रॉब्लम आती है तो हम ड्रेनेज होल जो है उस जगह के ऊपर जो अपस्ट्रीम की तरफ को ड्रेनेज गैलरी के अंदर अगेन अराउंड 15 डिग्री अपवर्ड्स हम होल मारते हैं, और होल को दोबारा हम फाइन मटेरियल के साथ, फाइन सीमेंट के साथ again we can fill up those voids and crack, so we can reduce the seepage. So what is the position and geometry of the grout curtains? For the concrete dam, the grout curtain is usually constructed near the heel of the dam. तो क्या होता है, heel जो है उस तरफ को जो है वो चांसेस होते हैं कि वो एरिया जो है वो वीक रहे। अगर जब वाटर प्रेशर आता है तो वो हील जो है वो वीक होने के कारण वहां पे डैम हमारा टिल्ट कर सकता है। तो और रिड्यूसिंग दिस सीपेज और अपलिफ्ट, तो इशू क्या है कि ये सारा पानी के साथ ही हो रहा है, कि पानी को ही हमने रोकना है और इस जगह को इम्परमिएबल बनाना, ताकि वाटर जो अंदर सीप होके हमारे डैम को जो है नुकसान ना कर सके। एंड द एम्बैंकमेंट डैम्स, द ग्राउट कर्टेन हैज टू बी इफेक्टिव रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इंटरनल इरोजन। तो ये जो हमारे एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं जिसके अंदर हमने क्ले डाल के उसका जो रूट बनाया होता है, उसके अंदर जो एरिया है वो इम्परमिएबल होता है, उसके अंदर से जो पानी नहीं पास कर सकता है, इसीलिए हम उसको क्ले को चूज करते हैं। और दूसरा ये है कि उस एरिया को रोकने के लिए, उस पानी को रोकने के लिए, उस पर्कुलेशन होने के लिए वो वाला एरिया जो है उसके अंदर हमने जो है जो अपस्ट्रीम की तरफ जो है डैम्स के ऊपर स्टोन पिचिंग दे देते हैं, उसके अंदर कंक्रीट दे देते हैं, ताकि वो जो एरिया है जिसके अंदर हमने फिल्टर डाला होता है, जिसमें से वो प्रेशर जो रिलीज करने के लिए वो ड्रेनेज गैलरी के अंदर जो होल दिए होते हैं, और उसके अंदर जो सीपेज वाटर आ जाता है, और सीपेज वाटर को हम बाद में जो है अप टू ए सर्टेन लिमिट, एंड देन उस एरिया के जो सीपेज वाटर है उसको हम टी वाटर कर देते हैं, उसको निकालते रहते हैं, और उस जगह के ऊपर हम जाके अंदर चेक भी करते रहते हैं ड्रेनेज गैलरी के अंदर कि कुछ इशू तो नहीं आ रहा डैम के अंदर। वो जो पीजोमीटर्स लगे रहते हैं उसके अंदर हम ये चेक करते रहते हैं, और भी इंस्ट्रूमेंटेशन जो ड्रेनेज गैलरी के अंदर रहती है वो हमें बताती रहती है कि हमारा डैम जो है किस हालत में है, किस तरह का है। सो ओनली ग्राउटिंग इज द गुड क्वालिटी कैन मेक ए सिंगल रो कर्टन एडिक्वेट। तो इसके अंदर जब हम ग्राउटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो होल हम मारते हैं, जो वर्टिकल होल रहता है, तो जनरली जो स्पेसिंग रहती है उस होल के अंदर वो 6 मीटर के करीब होती है जो प्राइमरी होल मारते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उन प्राइमरी होल्स के बीच में फिर सेकेंडरी होल मार लेते हैं। उन सेकेंडरी होल के अंदर जब हम जो ग्राउट जो लूजन वैल्यू हम नहीं अचीव करते थे प्राइमरी में, देन अगेन वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट ग्राउटिंग। और फिर कभी क्या होता है, वो वी हैव टू अचीव दैट रिजल्ट और नहीं हुआ है, वो जो हम लूजन की जो बात कर रहे हैं, अगर वो 3 के आसपास नहीं आ रही है तो उसमें टेरिटरी होल भी बीच में मार देते हैं सॉरी, और उसके अंदर फिर हम ग्राउट करते हैं। और वो जो ग्राउट है वो इसलिए होल में से करना पड़ रहा था कि कई बार क्या होता है, जो फिशर जो होती है, जो वायर्स होता है, उसके अंदर जो मटेरियल होता है इनसाइड बॉटम ऑफ दिस डैम, वो कुछ इस तरह का होता है, कभी सैंडी भी हो सकता है, सिल्टी भी हो सकता है, उसके अंदर क्ले भी हो सकती है। सो एक होल में जो उस बोर होल में से जिसमें से हमने जो लूजन वैल्यू चेक किया था, जब हम ग्राउट करना शुरू किया तो पता चलता है कि वो मे बी वो उन एरियाज के अंदर उस फिशर्स में से उस उतनी जगह नहीं मिल पाती, उस वॉइड को फिलअप नहीं कर पाता है। तो हम लोग जो है वो टेरिटरी होल मारते हैं, ताकि अगर वो मान लो अगर 3 मीटर के ऊपर हमारा आया तो 3 मीटर का एरिया वी हैव टू इंश्योर इट कि वो जो ग्राउट हमारा 3 मीटर में नहीं गया था, जो हमने बीच में जो थर्ड वाला जो होल मारा है उसके थ्रू जब हम ग्राउट करेंगे तो उसके साथ उसके अंदर उन वाइड्स को फिलअप कर देते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग ऑफ द, तो ग्राउट मिक्स जो बनाते हैं उसका डिजाइन कैसे होता होगा, तो पेनिट्रेबिलिटी हमें क्योंकि मिलनी चाहिए। So when we are talking about the water cement ratio primarily determines the properties of the grouts, bleeding, shrinkage, flow property, strength and penetrability of the certain type of grout. तो जब भी हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की, वो जो हमारा जो ग्राउट है वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, श्रिंकेज नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग होगी तो श्रिंकेज भी होगी।
और वो उसके अंदर हमें फ्लो मिलना चाहिए। तो इन नेक्स्ट स्लाइड्स वी विल टॉक ऑन दिस ब्लीडिंग और फ्लो हमें कैसे चेक करना, तो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सो द वाटर सीमेंट रेशियो कैन बी एक्सप्रेस बाय वॉल्यूम और बाय वेट। तो पहले जब अर्लियर 50 से पहले जब हम डैम बनाते थे उसके अंदर हम क्या निकालते होते थे, वॉल्यूम को हम कैसे ले लेते थे कि जैसे हमने 1000 लीटर सपोज वॉल्यूम है इसका ग्राउट का, तो उसके अंदर जनरली क्या रहता है, अराउंड 750 के करीब जो है सीमेंट रहता है एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज 6:1। सो अराउंड 750 kg वी आर एडिंग और 750 लीटर ऑफ वाटर। तो 1000 लीटर के करीब इसलिए बन जाता है क्योंकि जो 760 लीटर जो केजी हमने सीमेंट लिया है, जो जनरली अपने इंडिया के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सीमेंट की है 3.15 है, उसको आप डिवाइड करोगे प्लस ये लोगे तो 1000 लीटर वो बन जाता है। So grout mix with the high water cement ratio generally offer the low resistance to the flow, resulting in high penetrability but lower the strength as well as higher bleeding. तो जब मैं बात कर रहा हूँ 50 से पहले की, तो हमारा जो पहले हम जो जनरली फर्स्ट वाला ग्राउट बनाते थे, जो वाटर रखते थे 3:1 करते थे, 2:1 करते थे, ताकि वो जो जब हम प्रेशर के साथ ग्राउट करेंगे तो उन वॉइड्स को थोड़ा ओपन किया जा सके और पानी उसके अंदर जब इजिली चला जाता उसके बाद हम रिड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो को कर देते थे। बट नाउअडेज जो है वी आर हैविंग अ माइक्रोफाइन सीमेंट्स। अभी जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कोल डैम की, तो वहां पे सबसे पहले हमने जो है ओपीसी यूज किया और उसके बाद मंत्री इसका क्या हुआ था? उसके बाद जब ये नहीं हो पाया तो उसके बाद हमने जो है उसके अंदर माइक्रोफाइन सीमेंट यूज किया था, वो जो लूजन वैल्यू को अचीव करने के लिए। और वो जो लूजन वैल्यू को अचीव करने के लिए जो माइक्रोफाइन सीमेंट यूज किया था, इससे पहले हम माइक्रोफाइन सीमेंट यूज हमारे डैम्स में नहीं करते थे बिकॉज एट दैट टाइम वी वाज नॉट हैविंग दिस टेक्नोलॉजी और हमारे पास जो है माइक्रोफाइन सीमेंट नहीं हुआ करते थे। और दूसरा होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब R&D हमने करके देखा तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारा जो सीमेंट होता था उसके जनरली जो माइक्रोन्स रहते थे अराउंड 50-60 माइक्रोन के करीब होता था, वो मतलब कोर्सर होता था। तो ऑफ कोर्स जो वॉइड्स रह जाते थे उसके अंदर, उससे नीचे उन वॉइड्स को नहीं भर पाता था। बट आज की डेट में हमारे पास और बहुत सारे इस तरह के केमिकल्स हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनके साथ उन फाइन फिशर्स को उनको हम भर सकते हैं। दैट वी विल डिस्कस इनटू द और इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। तो ये ग्राउट जो बनाया जाता है, ये जो इसकी पेनेट्रेबिलिटी होती है, ये ग्राउट की जो है वो उन वॉइड्स के अंदर इजी होनी चाहिए। और इजी होने का मतलब ये है कि उसके अंदर ये जो जैसे ही अगर हमने उसको पानी को जो जैसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसके कारण क्या होता है, वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। मतलब वो वाली जगह जब ये सेट होता है सीमेंट तो वो जगह खाली रह जाती है। और ज़्यादा पानी डालने से हमारी जो है जो स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, वी कैन नॉट अचीव दैट स्ट्रेंथ due to this bleeding and the lack of strength. Grout may suffer from poor long term durability। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि वाटर सीमेंट रेशियो 1:1 जो जनरली क्या आज की डेट में जो हमारे माइक्रोफाइन्स आते हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर वी रिकमेंड दैट वी हैव टू गो विद द 1:1 वाटर सीमेंट रेशियो, एक्चुअली 0.8 to 1। सो अभी क्वेश्चन कई बार दिमाग में ये आता है कि ये 1:1 ही क्यों लिया गया, 0.8 क्यों लिया गया है? बिकॉज अभी जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ब्लीडिंग की, you have to be check the bleeding। तो अभी मैं नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कितनी होनी चाहिए। तो ब्लीडिंग जो है इसका एक मतलब एक हमने जो किया हुआ कि अगर इसकी जो श्रिंकेज है वो कम रहती है तो इसका मतलब वो ग्राउट जो है स्टेबल भी है और उसके अंदर जो है श्रिंकेज नहीं होगी। तो ये लॉन्ग टर्म जो ड्यूरेबिलिटी होती है, इफ द ब्लीडिंग इज देयर देन ऑफ कोर्स वी आर cannot achieve this long term durability। So grout with the water cement ratio lower than 3:1 by volume should be used to avoid the adverse effect of the thin grout। तो 3:1 वाटर सीमेंट टू रेशियो जो है हमारा उसका कम होना चाहिए। आज की डेट में मैं वही बोल रहा हूँ, जो R&D जब हुई है तो हमारे पास जो सीमेंट अभी आ गए हैं वो बहुत अच्छे सीमेंट आ गए हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो है दैट इज द चेंज, वो मैं अभी नेक्स्ट वाले में हम उसके ऊपर बात करते हैं वो किस तरह का रहता है। तो जनरली जो हम सीमेंट ग्राउट जो बनाते थे इसके लिए 1:1 वाटर सीमेंट रेशियो डालते थे। और अब जो उसके अंदर जो है हमने ऊपर लिखा हुआ 2% बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट क्या है? इट इज ए
clay. It's a natural material which is come from the nature. तो इसको हम सीमेंट के अंदर क्यों ऐड करते थे? इसको ग्राउट को स्टेबल बनाने के लिए, बिकॉज ये वाला जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल जैसे पानी के साथ मिक्स होता है तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है स्वेलेबल है, ये स्वेल कर जाता है 2 से 2.5% तक जो है स्वेलिंग होने के कारण उस मिक्स को कोहेसिव बना के रखता है, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं सीमेंट के उनको सेटल्ड नहीं होने देता है, वो सस्पेंशन में रखता है। और इसके साथ जो है वो उसके साथ हम जो है प्लास्टिसाइजर्स भी डालते हैं, वो जनरली वो जो रहता है 1.5 से 2% के बीच में रहता है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो एक सीमेंट ले लिया है 750 kg के करीब, और उसके अंदर जो है वो 750 लीटर के आसपास उसमें पानी डाला 1:1, और बेंटोनाइट डाली गई और एडमिक्सचर डाला गया, तो ये एक 1 क्यूबिक मीटर का मिक्स बनाया गया। बट आज की डेट में जब हम ग्राउट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो सीमेंट बैग जो रहते हैं वो बैग का एक स्टैंडर्ड रहता है, जैसे 50 kg का बैग है, तो हमारा जो पंप रहता है उसके अंदर जो सीमेंट जा रहा है, ऑटोमेटिक प्लांट भी आते हैं और मैनुअल भी होते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट के अंदर तो हम डायरेक्ट जो है वाटर सीमेंट रेशो फिक्स कर देते हैं, ऑटोमेटिक उतना ही सीमेंट जाएगा, उसके अंदर उतना ही वाटर जो है मिक्स होगा, और उसके बाद उसके अंदर जो है प्लास्टिसाइजर जो हमने फिक्स किया 1.5% और 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट वो उसके अंदर ऐड हो जाता है और उसको मिक्स कर देता है ग्राउंड। बट जिस जगह पे ऊपर हम मैनुअल करते हैं तो वहाँ पे हमें पता है कि हमने 100 किलो सीमेंट डाल दिया है, तो 100 किलो उसके अंदर हम मैनुअली पानी डालते हैं और उसको मिक्स करते हैं। उसके अंदर जो हमारे पंप रहते हैं ये मैनुअल वाले पंप होते हैं, उसके अंदर हमें जो है वो ऑटोमेटिक नहीं रहता है, उसके अंदर हमें पानी खुद डालना पड़ता है, सीमेंट खुद मिक्स करना पड़ता है, और वी हैव टू मेक इंश्योर कि वो जो ग्राउट है वो प्रॉपर मिक्स हुआ होना चाहिए। तो जनरली क्या रहता है, ये ग्राउटिंग प्रेशर की भी बात की जाती है, सर प्रेशर कितना होना चाहिए ग्राउट जब हम कर रहे हैं, तो यूरोप के अंदर थंब रूल वो क्या बोलते हैं कि 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर डेप्थ ऑफ होल, तो उसके अंदर हम ये बोलते हैं अगर 20 मीटर अगर डीप हमने होल कर दिया तो अप्रॉक्सीमेटली 20 kg तक हमारा प्रेशर हो सकता है, जा सकता है। तो स्टॉप क्राइटेरिया कहाँ पे हमने रख देते हैं, हम ये बोलते हैं अचीव द डिजायर्ड वाटर टाइटनेस, वो जो हमने जो लूजन वैल्यू जो की थी अगर वो 3 के आसपास आ जाती है तो उस एरिया के अंदर जो है जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उस जगह पे जाके हम उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो ये एक ड्रेनेज गैलरी है जिसके अंदर हम ये दिखा रहे हैं कि ड्रेनेज गैलरी के अंदर भी जो वाटर जो अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ को देख रहे हो ये अपस्ट्रीम साइड है, तो यहाँ से अभी भी पानी जो है इसके सीप होके यहाँ से अंदर आ रहा है, ड्रेनेज होल्स यहाँ पे रखे होते हैं उसमें से ये पानी आता है, एंड इट इज एन इजियर एक्सेस फॉर द फाउंडेशन ड्रेन इज प्रोवाइडेड। तो ये इसलिए कर दिया जाता है कि लेटर ऑन जब हमें जरूरत होती है इंस्पेक्शन करनी होती है डैम की, तो उस जगह पे जाके हम इसको गैलरी के अंदर चले जाते हैं और इंस्पेक्शन करते हैं, और इसके अंदर जो सीपेज जो है कहीं बढ़ गई है देन वी हैव टू ट्रीट दैट सीपेज। तो ये अपस्ट्रीम की जो वॉल रहती है, ये कॉन्क्रीट इसमें से जो पानी आ रहा था उसमें इंजेक्शन करके इस पानी को हम रोक सकते हैं, और if the water is coming from the downstream side then ये जो पानी जो है इस ड्रेनेज गैलरी के अंदर हम अपस्ट्रीम की तरफ को अराउंड 15 डिग्री के अंदर अंदर होल मार के दोबारा इसको ग्राउट कर देते हैं। व्हाट वी हैव टू डू वो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन पीपल, वो जो डिजाइन वाले हमें बताते हैं कि इन्होंने जो परमेबिलिटी अभी चेक की है वो कितनी आ रही है और किस एरिया में हमने कहाँ पे होल मार के उस जगह पे ग्राउट करना है। तो अभी जो हम जिस सीमेंट ग्राउट के पीछे बात करते थे वो सीमेंट ग्राउट हमने करना है, तो ग्राउट करना होता है वो ग्राउट हम बोलते हैं कि वो कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और वो जो पेनिट्रेबिलिटी है उस सीमेंट की, जो सीमेंट हमने जो ग्राउट बनाया था वो पेनिट्रेबल कैसे हो सकता है। फर्स्ट इज स्टेबल, जिसकी हम बोल रहे हैं कि जो ब्लीडिंग जो है शुड बी लेस देन 2%, तो ये 3% से अगर नीचे स्टेबिलिटी आती है इसका मतलब उसके अंदर वो जो है श्रिंकर जो है जो हमारी एक जो लिमिट दी गई है उसके अंदर है। सेकंड इज जो ग्राउट हमने जो बनाया था जिस वाटर सीमेंट रेशियो के ऊपर, वो विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी हम मार्च कॉन में चेक करते हैं, हम बोलते हैं कि वो जो है लेस देन 35 सेकेंड्स के अंदर होनी चाहिए, मतलब वो जो ग्राउट जो है इतना फ्लूएबल होना चाहिए, इतना फ्लूइड होना चाहिए कि वो 20 सेकंड के अंदर उसमें से क्रॉस कर जाए। वो इसलिए है कि जब हम ग्राउट करते हैं, जब वो पंप के साथ जो पैकर लगा के बोर होल के पास, तो जब ये पंप चलता है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स सब सर्टेन प्रेशर रहता है, आगे से रेजिस्टेंस रहती है, जिसके कारण जब प्रेशर होता है इसके अंदर अगर ये विस्कोसिटी प्रॉपर नहीं होती है तो वहां पे जो है हमारा पाइप जो है चोक होना शुरू हो जाता है, बिकॉज जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो सीमेंट के पार्टिकल्स हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो उनकी टेंडेंसी जो है वो नीचे बैठने की होती है और वो हमारी जो है
पाइप को जो है चोक करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए ये जो पेनिट्रेबिलिटी के लिए जो हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि वो ग्राउट जो है वो स्टेबल होना चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड इज द ग्रेन साइज। तो ये जो सीमेंट जो रहता है इसका ग्रेन साइज की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं D95 होना चाहिए, मतलब 95% वो वाले पार्टिकल जो है वो पास होने चाहिए। सो जो अभी जो हमारा जिस माइक्रोफाइन सीमेंट की हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट होता है, जिसका सरफेस एरिया जो है हमारा 650 स्क्वायर मीटर पर केजी रहता है, और 800 भी रहता है, 900 भी रहता है। सिर्फ उसका जो एरिया सरफेस एरिया ही जो है वो ज्यादा है, उसके कारण हम उसको सिर्फ माइक्रोफाइन सीमेंट नहीं बोलते हैं। माइक्रोफाइन सीमेंट का जो मतलब होता है कि उसके अंदर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माइक्रोफाइन सीमेंट, जो कि जो हमारा जो नॉर्मल सीमेंट होता है उसके अंदर जो है 40 से 50 माइक्रोन का होता है। पर इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपको 2 माइक्रोन भी होता है, 5 माइक्रोन होता है, 10 माइक्रोन होता है, एंड देन वी सेड दैट द 20 माइक्रोन जो है वो 95% जो है पास हो जाता है उसके अंदर। ये जो पार्टिकल्स है 2, 5, 10, 15, 20, ये वाले जो है पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एंड ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो रहते हैं, ये पार्टिकल जो है इट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इनटू द पेनिट्रेबिलिटी। तो ये वाला सीमेंट इसीलिए आज की डेट में जो है हम उस जगह पे यूज करते हैं जब ओपीसी यूज हो चुका है, इसके अंदर कुछ वायर्स रह जाते हैं जिन वायर्स को हम जो है उसके साथ नहीं भर सकते हैं। रीजन क्या रहता है कि पार्टिकल साइज का उसका 40 से 50 माइक्रोन, उसके नीचे वाले जो एरिया जो रहेगा, वायर्स जो रहेंगे, उनको इस एरिया को हम माइक्रोफाइन सीमेंट के साथ भर सकते हैं। सो अभी उसको जो स्टेबिलिटी को हमने जो चेक करना था वो क्या किया जाता है कि ये जो ग्राउट लिया जाता है उस ग्राउट को हम जो है 1 लीटर सिलेंडर जो रहता है उसके अंदर डाल लेते हैं, और उसको 2 घंटे तक उसका वेट करते हैं, और उसमें हम देखेंगे कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर जो है हमें क्लियर वाटर दिखने लग पड़ता है। तो हम इसमें से परसेंटेज निकाल लेते हैं कि इसके अंदर कितना टोटल 1 लीटर में ये कितने परसेंट आ गया, 2 लीटर है, 3% है, 4% है, 5% है, बट ब्लीडिंग इज लेस देन 2% विच इज एक्सेप्टेबल। इफ द ब्लीडिंग इज मोर, मतलब वो 8% है, 10% है, तो उसका रीजन क्या होगा कि जैसे ये सूखता है इसका मतलब वो ऊपर जो पानी जो था, पानी जब उसमें से निकल जाएगा तो उतने एरिया जगह खाली रह जाती है, उतना जो है एरिया के अंदर श्रिंकेज जिसको हम बोल देते हैं वो रह जाती है। इसके लिए इसकी ब्लीडिंग जो हम बोलते हैं कम होनी चाहिए। जितनी ब्लीडिंग कम होती है, जितना ग्राउट जो है स्टेबल रहता है, लोअर दी viscosity for improve penetrability using superplasticizer as the dispersing admixture। तो अभी क्या है, जैसे ये जो हमने अभी आप देख रहे हो 3 कोन है जिसके अंदर हमने जो है सेम वाटर सीमेंट रेशो के साथ 3 ग्राउट बनाए, और इसके अंदर ये फर्स्ट वाला अगर आप देखते हो तो इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर कोई भी सुपर प्लास्टिसाइजर नहीं डाला है। तो ये ग्राउट किस तरह का रहता है, देखो ये इस तरह का रहता है हमारा। और रीजन क्या था कि वाटर सीमेंट रेशो हम तीनों में एक ही रखी हुई है, सेम रखी है। और नेक्स्ट वाला एक और हमने ग्राउट बनाया है जिसके अंदर हमने जो है 0.6 वाटर सीमेंट रेशो ली है, यू कैन जस्ट सी। तो इसमें और इसमें आप फर्क क्या देख रहे हो, इसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा बढ़ गया, इसने ज्यादा कवर किया है। एंड इफ यू सी द थर्ड वन, द वाटर सीमेंट रेशो के हिसाब को सेम रख के प्लास्टिसाइजर हमने उसके अंदर 1.5% डाल दिया। इसमें आप डिस्पर्शन देख रहे हो तीनों में कितना फर्क है, जिसके अंदर प्लास्टिसाइजर नहीं डाला था, जिसके अंदर हमने प्लास्टिसाइजर डाला था 0.6%, और जिसके अंदर 1.5% डाला। तो ये वाला जो मिक्स हम बनाते हैं, इस मिक्स को उसके बाद हम जो है चेक करते हैं कि इसके अंदर ब्लीडिंग कितनी आती है। जैसे जनरली एज सेड के वी यूज सुपर प्लास्टिसाइजर 1.5 से 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट। तो इसको जब हम चेक करके देखेंगे तो इसकी हम विस्कोसिटी चेक करेंगे, और उसके बाद इस ग्राउट को हम जो है वो देखेंगे कहीं श्रिंकेज वगैरह तो नहीं हो रही है। तो वाटर सीमेंट रेशो जो है उसको इस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट ये जो नए वाले जितने भी सीमेंट आ रहे हैं माइक्रोफाइन आज की डेट में जो आ रहे हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें ब्लीडिंग इज लेस देन 2%, एंड द वाटर सीमेंट रेशो इज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज 1:1। तो इंजेक्शन ग्राउट जब हम करते हैं इसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या रहता है, उस ग्राउट को करने के लिए हमने सबसे पहले इस मिक्स जैन को बनाना है, और उस सिस्टम के हिसाब से उसको हमने
पैकर लगा के उसको इंजेक्ट करना है। एंड द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑलवेज हैव टू बी यूज द सुपर प्लास्टिक टुगेदर विद द सीमेंट। तो बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, जैसे अपने फर्स्ट वाला देखा जिसके सुपर प्लास्टिसाइजर नहीं है, तो इवन 1:1। अगर इसी ग्राउट के अंदर हम क्या करते हैं, 2:1 कर देते हैं वाटर को। सपोज जो फर्स्ट वाला है प्लास्टिसाइजर नहीं डाला हुआ है, तो ग्राउट तो फ्लूइड बनेगा, बट क्या हो जाएगा उसके अंदर, द ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ जाएगी। द सेम नो सुपर प्लास्टिसाइजर हैविंग ए वाटर सीमेंट रेशियो 3:1, तो उसके अंदर जो वाटर जब 3 टाइम हो जाएगा, जब उसकी आप ब्लीडिंग चेक करोगे, तो ब्लीडिंग जो है वो मोर देन 15% आ जाएगी। वो 15% आ जाएगी, मतलब वो दैट इज द श्रिंकेज, तो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसीलिए हमने ये जो 3 जो सैंपल आपको बना के दिखाए हैं, इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि हमने जो है सुपर प्लास्टिसाइजर जो है इस ग्राउट के अंदर डालना है, और हमने जो जो श्रिंकेज है उसको रिड्यूस करना है। और ये जो आज की डेट में थोड़े से जो सुपर प्लास्टिसाइजर से ये जो प्लास्टिसाइजर, जब हम बात करते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर की बात करते हैं, नाउ इट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपर प्लास्टिसाइजर। जो ये सुपर प्लास्टिसाइजर जो होते थे अराउंड 20-25% जो है वाटर रिडक्शन देते थे, बट आज की डेट में जो हाइपर प्लास्टिसाइजर्स आ गए हैं, इट कैन रिड्यूस वाटर अप टू 40%। 40 टाइम तक वाटर जो है वो कम करने के बाद हमें सेम स्लम्प हम अचीव कर सकते हैं। इसके अंदर आगे आ जाता है डिस्पर्शन के लिए डिस्पर्सिंग एजेंट। सो इट इज हैविंग ए लिटिल बिट डिफरेंट केमिस्ट्री देन द सुपर प्लास्टिसाइजर और हाइपर प्लास्टिसाइजर। तो इसके अंदर क्या है, एक तो वो वाटर रिडक्शन देता है, प्लस उसके अंदर थोड़ा सा हमें जो है ये जो डिस्पर्सिंग एजेंट है, इसके अंदर एक और प्रोडक्ट हम डाल देते हैं, जिसके कारण हमें थोड़ा सा उसका जो है वो सरफेस एरिया ज्यादा मिलने के कारण उसके अंदर जो श्रिंकेज जो होगी, उस श्रिंकेज को और हम रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल जो प्लास्टिसाइजर सुपर प्लास्टिसाइजर डालते हो और हाइपर प्लास्टिसाइजर जो डालते हो, उसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। सो वी ऑलवेज सेज दैट वी हैव टू यूज द into our grout mix and we have to add the dispersing agent। तो इसके अंदर अगर आप, जब इतनी बात हो गई, हमने सारा समझ लिया, तो लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो क्या दिया हुआ है, ये हमारा एक प्लांट रहता है इस तरह का। इसके अंदर क्या रहता है, ये वाला जो एक मिक्सर होता है, इसको हम बोलते हैं कोलॉइडल मिक्सर। कोलॉइडल मिक्सर मतलब ये जो सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं, वी हैव टू ब्रेक एट द 1500 आरपीएम, 1500 से 2000 आरपीएम इसके होते हैं। इसके अंदर जो है वो सीमेंट जाता है इस जगह के ऊपर, इस सीमेंट को हम डालते हैं। सबसे पहले कैसे किया जाता है कि ये सारा मैनुअली है ना पूरा, तो इसके अंदर हमने 1:1 के हिसाब से, जैसे 100 kg का हमने जो सीमेंट इसके अंदर डालना, तो 100 लीटर इसके अंदर हमने पानी डाल देते हैं, और उसके बाद 100 लीटर के साथ जो है 2 बैग जो है इसके सीमेंट के डाल दिए जाते हैं। और तीसरा हमारे पास जो है वो डिस्पर्सिंग एजेंट रहता है। मिक्स जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें डिस्पर्सिंग एजेंट डाल दिया जाता है, और इसको हम 2 मिनट तक मिक्स करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट इज द एजिटेटर टैंक। तो इस मिक्स को उसके बाद इस एजिटेटर टैंक के अंदर डाल दिया जाता है। एजिटेटर टैंक जो रहता है, इसमें एक एजिटेशन अंदर होती है बहुत स्लो स्पीड के, 50 से 60 या मैक्सिमम जो 100 आरपीएम के ऊपर इस मिक्स को फ्रेश रखता है, इसको घुमाता रहता है यहाँ पे। और इसी के साथ ये जो एजिटेटर टैंक रहता है, इसी के साथ ये पंप जो है हमारा कनेक्टेड रहता है। तो जैसे इस वाल्व को खोलते हैं, उसके बाद ये पंप आ जाता है, इस पंप को स्टार्ट करते हैं, और ये पंप जो है ग्राउट को जो है स्टार्ट कर देता है टुवर्ड्स पैकर की तरफ, जिस जगह पे हमने, जिस होल को हमने ग्राउट करना होता है, जहाँ पे हमने पैकर लगाया होता, तो ये पंप जो है ग्राउटिंग स्टार्ट कर देता है। ऐसे जो आज की डेट में जिस प्लांट्स की हम बात करते हैं, ये वाले प्लांट जो हैं ये ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं। इसके अंदर जो हमने जो स्क्रू कन्वेयर लगा दी जाती है, जिसके अंदर इसको शेड के अंदर रखते हैं। सीमेंट जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है सेट किया रहता है। इसके अंदर जो है 100 kg 200 kg सीमेंट जाएगा, उसके अंदर ये पूरा जो है मिक्स होगा, वाटर भी इसी के अंदर ही जाएगा, और डिस्पर्सिंग एजेंट जाएगा। देन नेक्स्ट इट विल गो इज टू द एजिटेटर टैंक। इसके अंदर नेक्स्ट इसमें एजिटेटर टैंक लगा रहता है। एजिटेटर टैंक के बाद जो है ये पंप लगा रहता है। उस पंप के अंदर जो है पूरा सिस्टम है कि जिस होल के अंदर टोटल ग्राउट कितना गया है, कितने प्रेशर के ऊपर गया है, ये सारी चीजें इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्लांट रहते हैं। तो इस तरह का सेटअप रहता है हमारे पास जब हम डैम्स के अंदर या दूसरी जगह के ऊपर जब हम ग्राउट करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास क्या रहता है कि जब हम साइट्स के ऊपर होते हैं, तो ये चीज जो है हमने वहां पे रखी होती है, जिसके अंदर हम ये क्या चेक करते हैं वहां पे। एक तो ये हम ना अपना
मार्शकोन के अंदर जो हमने बात की है कि हमने अब उसकी विस्कोसिटी चेक करनी है, लेस देन 35 सेकंड बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ये मार्शकोन दी हुई है। अगर राइट साइड में हम देखते हैं तो इसका जो डाया है ऊपर का 15.5 है एंड डेप्थ इज अराउंड 29 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर का इसका जो है ये वाला जो वर्टिकल जो है ये रहता है, और इसके अंदर नीचे का जो डाया रहता है इसका वो जो है 8 mm का रहता है। तो इसमें से हमने जो है ग्राउट को टेस्ट करना होता है। इसमें 1.5 लीटर जो है ग्राउट डाल देते हैं और इसको हम चेक करते हैं कि 1 लीटर जो ग्राउट है सॉरी कितनी देर में निकला है, वो टाइम जो है नोट कर लेते हैं। और उसके बाद ये वाला जो अब बात कर ली है हमने, समझ गए हैं ये सारा, तो इसके मेन जो है इंजेक्शन जब हम बात करते हैं आज की डेट में, तो 4 मेन टाइप ऑफ इंजेक्शन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वी आर हैविंग। तो उसके अंदर क्या क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट इज द वी वाज टॉकिंग अबाउट द सीमेंट। वो सीमेंट जो हमारा ऑर्डिनरी सीमेंट हो सकता है और माइक्रोफाइन सीमेंट हो जाता है। एक और चीज है हमारे पास, सेकंड इज द मिनरल ग्राउट्स, जिसके अंदर कोलाइडल सिलिका भी होती है और वाटर ग्लास भी रहता है। थर्ड्स हमारे पास जो आते हैं वो आते हैं पॉलीयूरेथीन। इट कुड बी ए सिंगल कंपोनेंट पॉलीयूरेथीन, 2 कंपोनेंट पॉलीयूरेथीन, एंड द एक्रिलेट्स होते हैं हमारे पास। बहुत लो विस्कोसिटी होती है, हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि ये चारों चीजें जो है जिनकी हम इस टेक्नोलॉजी की जो बात कर रहे हैं, हमारे जो डैम्स हैं उसमें इनको यूज करते हैं। तो हमारा सीमेंट तो हम कहीं भी किसी भी जगह पे ग्राउटिंग में यूज करते हैं। ये मिनरल ग्राउट्स वगैरह जो रहता है, मैंने अभी बोला जो हमारे पास ये नई टेक्नोलॉजी है, आई विल टॉक अबाउट दिस कोलाइडल सिलिका नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद ये पॉलीयूरेथीन जो रहते हैं ये जो है इमीडिएटली कट ऑफ कर सकते हैं पानी को। जो कहीं सीपेज हो रही है, कहीं लीकेज हो रही है हमारे डैम के अंदर, उस जगह के ऊपर उस पानी को रोकने के लिए, क्योंकि कोई भी सीमेंटिशियस प्रोडक्ट वहाँ काम इसलिए नहीं करता है, सीमेंट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होगा वो कहीं जाके होगा 3-4 घंटे और फाइनल जो होगा 8 घंटे के आसपास, तो वो रनिंग वाटर को नहीं रोक सकता। तो उस रनिंग वाटर को रोकने के लिए हमें जो है पॉलीयूरेथीन्स करना पड़ता है। इसी तरह के जो हमारे जो डैम्स के अंदर कभी को फाइन क्रैक्स आ गए, कोई ड्रेनेज गैलरी के अंदर कुछ इश्यूज हैं, क्रैक्स हैं, तो उनको हम जो है एक्रिलेट्स के साथ जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये पॉलीयूरेथीन किस तरह का होता है या फिर ये एक्रिलेट्स किस तरह के होते हैं। एक्रिलेट्स का भी दिखाऊंगा जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो एनी टाइप ऑफ सीमेंट may be used for the injection purpose, but a coarser cement with the relatively large particle size can only be used to fill larger opening। तो हमने जिसकी अभी ये जो मैंने बात की है ये कोलाइडल सिलिका की, तो ये जो सीमेंट जो रहता है, ये जो इसके खुद का अपना पार्टिकल अगर 40-50 माइक्रोन का है, तो ये सिर्फ बिगर जो एरिया है उनको ही फिलअप कर सकता है। तो जो उससे छोटे एरिया हैं, जो वॉइड्स हैं, उनको हम कैसे भर सकते हैं? वी कैन फिल अप विद द हेल्प ऑफ कोलाइडल सिलिका। तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा एवरेज पार्टिकल साइज हमारे यहाँ पे जो लिया जाता है, जो सीमेंट का जो आता है वो मैंने बताया है आपको 40 से 50 माइक्रोन का होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया, तो हमारे यहाँ जो 240 से लेके 300 स्क्वायर मीटर पर केजी तक का आता है। पर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रोफाइन सीमेंट, तो इसके अंदर हमारे जो पार्टिकल साइज हैं, दिस इज कॉल्ड पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन साइज, हम जिसको जो है मेजर करते हैं, देखते हैं D95 95% ऑफ पासिंग, वो उतने पार्टिकल्स जो है उतने माइक्रोन जो है वो पास होना चाहिए। तो D95 मतलब 20 माइक्रोन, तो 20 माइक्रोन जो है हमारा 95% पास हो जाता है। और उसके अंदर हमारे पास जो है वो D95 जो है 15 माइक्रोन भी है, 15 माइक्रोन जो है वो ऑलमोस्ट 95, मतलब उसके अंदर जो है वो फाइन इतने पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर 1 माइक्रोन जो है अराउंड 20% के करीब होता है, और जो 5 जो है वो अराउंड जो है वो 50% के होता है। 15 माइक्रोन जो है 100% 95% इजिली पास कर जाता है। सो ये जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं ये उस जगह पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे हमारा जो है नॉर्मल ओपीसी नहीं भर सकता है। प्रेजेंटली हमारे पास हमने क्या ये प्रोडक्ट्स को, कौन सा प्रोडक्ट सूट करता है, इसको एक हमने ग्राफ में लिया होगा। जैसे अगर हमारे पास अगर आप सीव एनालिसिस करते हो तो आपको ये पता चल जाता है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो किस तरह के हैं। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सिल्ट ले ली है, सैंड ले ली है और ग्रेवल ले ली है। तो इसको हमने सिल्ट को आगे जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वन इज द फाइन 0.002, वन इज द मीडियम एंड कोर्स। सेम इसके अंदर हमने सैंड में फाइन, मीडियम एंड कोर्स। तो फाइन जो सैंड जो रहेगी
वो जो है वो 0.2 की रहेगी, मीडियम 0.6 की रहेगी और कोर्सर जो है वो 2 माइक्रोन की। इसके अंदर आगे सेम ऐसे ग्रेवल का ले लिया 20 और 60। तो इसके अंदर जब हमारे पास ये अगर इस तरह का ग्राफ बना हुआ, इस ग्राफ को देख के डायरेक्टली हम लोग जो है वो अपना प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा प्रोडक्ट जाएगा। तो जैसे मिनरल ग्राउट की बात करते हैं, जिसके मैं आपको बता रहा था कि जो बहुत ज्यादा फाइन्स जो रहते हैं इस एरिया के लिए, जिसके अंदर हम सैंड की बात करते हैं जिसमें फाइन, कोर्स और मीडियम वाली है, ये इस एरिया को हम लोग जो है वो सीमेंट के साथ नहीं भर सकते हैं। रीजन, पार्टिकल साइज। तो इस एरिया में मिनरल ग्राउट की जब हम बात कर रहे हैं तो मिनरल ये जो ग्राउट है इसका पार्टिकल साइज इज 0.015। तो ये प्रोडक्ट जो है लिक्विड आता है एंड इट इज जस्ट लाइक जैसे बफेलो मिल्क दूध होता है, अपना भैंस का दूध होता है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है ये। तो ये उस एरिया में भरा जा सकता है जहां पे फाइन सैंड होती है। उस एरिया को हम दूसरे और किसी ग्राउट के साथ नहीं भर सकते हैं। बट इफ यू गो विद द अनदर पार्टिकल्स, जिसके अंदर अगर आप देखोगे कि ग्रेवल्स है, तो उस ग्रेवल्स को जो हमने भरना होता है, तो उसको भरने के लिए जो है हमारे पास अगेन वी कैन नॉट फिल दिस एरिया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल सीमेंट। तो वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट माइक्रोफाइन्स हैं जिनके साथ उस एरिया को हम भर सकते हैं, उस एरिया के वॉइड्स को भर सकते हैं। ऐसे ये जो उसके अंदर जो ग्रेवल जो रहती है, जिसके अंदर मीडियम और कोर्सर पार्टिकल्स हैं, उनको जो हम जो है वो ओपीसी के साथ भर देते हैं। राइट। तो ये जो क्लाइडल सिलिका जिसकी हम बात कर रहे थे, एक स्टेबल ग्राउट होता है और ये जो पार्टिकल्स हैं इसके 0.015 है, नैनो पार्टिकल्स इनको बोला जाता है। बहुत स्टेबल ग्राउट होता है और इसका जो जेल टाइम होता है, उस जेल टाइम को हम लोग जो है अकॉर्डिंग टू द साइट कंडीशन इसको हम जो है एडजस्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह का रहता है कोलाइडल सिलिका। तो ये देखिए, ये वाला जो है ये कोलाइडल सिलिका है, जिनको ये आपको दिखा रहे हैं हिला के। एंड दिस इज इट्स एक्सेलेटर्स। इस एक्सेलेटर को जब हम ऐड करते हैं 5%, 10%, 15%, तो इसको हम 10 मिनट से लेके 150 मिनट तक इसको हम इसके जेल टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जेल टाइम मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि हमें ये ना हो कि हमने स्ट्रेंथ को अचीव करना, हमने उस वायर्ड को, उन वायर्ड्स को हमने फिलअप करना है जो वायर्ड्स हम ओपीसी के साथ नहीं भर सके, जिन वायर्ड्स को हम माइक्रोफाइन सीमेंट के साथ नहीं भर सके, उन वायर्ड्स के अंदर ये कोलाइडल सिलिका जेल जाती है, उन वायर्ड्स को ये भर देती है। और ये जो है जेल जो है, जेल इसलिए बार बार बोल रहा हूँ ताकि हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन शुड नॉट कम दैट इट विल गिव यू अ हायर स्ट्रेंथ। तो इसकी जनरली क्या रहती है, सैंड के अंदर स्ट्रेंथ जो है हम अगर चेक करते हैं, सिल्ट, सैंडी और सिल्टी स्ट्राटा जो रहता है, तो उसके अंदर जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है अराउंड 0.5, 0.6 एमपीए जो है 2 दिन के बाद आती है, 3 दिन के बाद आती है। सो ही हैज एडेड दिस एक्सेलेटर and with the naked eye you can just imagine what is viscosity. Almost it's equal to water, पानी की तरह ही होता है। जहां पानी जा सकता है वहां पे ये प्रोडक्ट जो है इजिली अचीव कर जाता है। 60-70% जो है उस एरिया के अंदर ये प्रोडक्ट चला जाता है और उस पानी को रोक देता है, उन वाइड्स को ये भर देता है। एक साइड ये वाला आप देख रहे हो कोलाइडल सिलिका है एंड इट्स एक्सीलेटर। इसको जब हम ऐड कर देते हैं ज्यादा, ये जस्ट दिखाने के लिए कि किस तरह का हो जाता है। ये देखिए, इनको मिक्स कर रहे हैं, इसको हमने हाई डोज डाल दी एक्सीलेटर की और ये स्लोली इस तरह से चेंज हो जाता है, ये इस तरह का हो जाता है, लाइक दिस। What is it? तो इसका जेल टाइम जब हम ग्राउंड कर रहे होते हैं तो इसको साइड कंडीशन के हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर हमने एक्सीलेटर कितना डालना है। ये 30 मिनट में सेट हो, 40 मिनट में सेट हो या 50 मिनट में सेट हो, इसको हम एडजस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोलाइडल सिलिका जेल, कोलाइडल सिलिका जेल। तो जिससे सिंगल कंपोनेंट सीमेंट ग्राउंड पंप हमारा होता है, उसी को यूज कर देते हैं। एक्सीलेटर एज एट द कंपोनेंट ए एट द रिक्वायर्ड रेशियो टू फुली
प्रिपेयर मिक्स prior to the pumping। ये इसके अंदर जो एक्सीलेटर है इसका नाम 320 है, जिसको हम डालते हैं और इसको जो है स्लो जो है इसको नॉर्मल जो पंप ग्राउंड पंप रहता है उसके अंदर स्लो स्पीड के ऊपर घुमाते हैं और साथ में इसको उसी पंप के साथ जो है इंजेक्ट कर देते हैं। ये बहुत इजीली जो है सैंड और ग्रेवल्स के अंदर जो है वो इजीली चला जाता है, जो कि माइक्रोफाइन सीमेंट और जो हमारा माइक्रोफाइन सीमेंट के अलावा ओपीसी ने जो ट्राई किया था, जो वाइट्स नए बने हैं, इसको यूज करते हैं। अभी ग्राउटिंग जो मैंने अभी पीछे जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, इस तरह के जो रहते हैं, इसको जैसे हमारा जो डैम जब कंप्लीट हो जाता है, ये जैसे मिशनरी डैम है, सपोज जो वाटर भरा हुआ तो लीकेज सीपेज आ रही है, तो इसके अंदर हमारे जो 3 प्रोडक्ट है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि अगर सीपेज ज्यादा है तो हम जो है उसको सीमेंट के साथ नहीं रोक सकते। देन वी आर हैविंग ए द फर्स्ट प्रोडक्ट, इट्स द प्रोडक्ट नेम। सो ये एक प्रोडक्ट है जिसको पॉलीयूरेथीन बोलते हैं। जैसे ये पानी के कॉन्टेक्ट में आता है, इमीडिएटली जो अपना शेप चेंज कर लेता है और उस होल को इमीडिएटली बंद कर देता है। उसके बाद ये एक और प्रोडक्ट है, ये मैं नेक्स्ट इसको वीडियो में भी दिखाऊंगा आपको। और ये हमारा ये माइक्रोफाइन सीमेंट है, इस एरिया में हम इन तीनों प्रोडक्ट को यूज करते हैं। इसी तरह की अगर आप ये सीपेज वगैरह देख रहे हो, डैम की जो सीपेज आ रही है, इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है एक्रिलेट्स, बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है, ये जो स्वेटिंग हो रही है इस डैम के अंदर, उसको रोका जा सकता है। वो किस तरह का होगा मैं आपको जब वीडियो दिखाऊंगा तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। ये वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो इससे आपको दिखेगा कि क्या है। 303 एक प्रोडक्ट का नाम है सूटेबल फॉर द क्रैक इंजेक्शन। तो इसको हम रिपेयर कर सकते हैं। लो विस्कोसिटी होता है बहुत, ये भी ऑलमोस्ट पानी की तरह होता है और इसका जो जेल टाइम है वो 3 मिनट तक रहता है। तो इसके अंदर आप ये देख रहे हो, ये 2 कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट ए इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ये कंपोनेंट बी है। इसके अंदर ये जो डाला गया है एक्टिवेटर डालते हैं, इसको इन दोनों को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट्स को। इस विस्कोसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर। बट वो जो कोलाइडल सिलिका जेल की जो हमने बात की थी, वो जेल जो है हमें स्ट्रेंथ नहीं देता है। ये वाला प्रोडक्ट जो हम कंक्रीट की रिपेयर करनी है उस एरिया में है जिस जगह में कोई और दूसरा प्रोडक्ट नहीं जा सकता है ड्यू टू विस्कोसिटी। तो इसको हम दिखा रहे हैं आपको। एक कंपोनेंट ए लिया, इट इज वाइड वॉल्यूम 1:1, नॉट वेट। दोनों प्रोडक्ट को लिया, इसको हमने मिक्स किया और अप टू ये 3 मिनट के अंदर अंदर जो है ये जेल बन जाता है इसका। एंड इफ यू सी ऑन द राइट हैंड साइड, ये साथ में जो है टाइम भी चल रहा है। सो ये जेल बन गया है, राइट। तो अभी क्या है, ये इस तरह का प्रोडक्ट होता है। अभी एक प्रोडक्ट और है, वो भी एक्लेट ही है। वो किस तरह का है, ये एक सैंपल बनाया अभी इसी का, आपको बाद में कंपेयर करने के लिए। ये दूसरा प्रोडक्ट है, सुटेबल फॉर डक्टाइल ऑफ फिलिंग ऑफ द क्रैक, रबर लाइक स्ट्रॉन्ग, गुड स्ट्रॉन्ग, विथस्टैंड हाई वाटर प्रेशर। सेंसिटिव वाटर जो रहता है उसके अंदर जो है इस एरिया को यूज कर सकते हैं, और जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है, कोई ज्वाइंट्स हैं, उस एरिया के अंदर हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो थोड़ा डिलेड होता है, ज्यादा होता है, 14-15 मिनट होता है, जिसको हम ओपन टाइम बोलते हैं या पॉट लाइफ बोलते हैं इस प्रोडक्ट की। जब हम मिक्स करके रखते हैं तो 14-15 मिनट तक मिक्स करने के बाद उसको हम रख सकते हैं। इन बिटवीन वो जो प्रोडक्ट जो है वो अपना प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता है और ये मटेरियल जो है स्टिफ हो जाता है। सेम वही कंपोनेंट ए लिया, कंपोनेंट बी लिया, उन दोनों के अंदर एक्टिवेटर डालें। ये भी सेम जो मिक्सिंग रेशियो रहेगी वो 1:1 रहती है। So this is 1:1। ये दोनों मिक्स कर दिए, स्टेरेड मिक्स किया अच्छी तरह, स्टेर कर दिया इसको। और इसकी पॉट लाइफ जो है 4 से 17 मिनट के बीच में। 16-17 मिनट से पहले पहले जो है ये 10 मिनट में, 12 मिनट में, 14 मिनट में भी जो है सेट हो जाता है। एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर एक्चुअली डिपेंड करता है सारा। और इन दोनों प्रोडक्ट को, जो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला है, इन दोनों को आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको एक इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, किस तरह का है।
सो दिस इज द सेकंड। तो इसका एक सैंपल हमने ये बना दिया है विदाउट डिस्टर्ब किए। फर्स्ट वाला जो पहला प्रोडक्ट देखा था, ये सेकंड वाला है दूसरा प्रोडक्ट है, जिसको हम कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स के अंदर रिपेयर के लिए यूज करते हैं, जहां से पानी आ रहा था, सीप हो रही होती है, पर जिसमें से दूसरे प्रोडक्ट कोई और नहीं जाता। ये इस तरह का रहेगा, ये थोड़ा स्टिफ रहता है। ये कंक्रीट रिपेयर्स में हम यूज करते हैं, डैम की जो रिपेयर्स है उसके लिए यूज करते हैं। जस्ट सी कितना फ्लेक्सिबल रहता है ये, एंड इट इज हैविंग ए वेरी गुड बॉन्डिंग विद द कंक्रीट। गुड। सो दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट। थर्ड, ये जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, इट इज कंसोलिडेशन फॉर दिस सिल्टी एंड सैंडी स्ट्राटा। बहुत जल्दी इसके साथ जो हम स्ट्रेंथ को अचीव कर सकते हैं, जो सैंडी और सिल्टी स्ट्राटा जो रहता है विद इन फ्यू मिनट्स। बाकी कोई भी है जो माइक्रोफाइन सीमेंट यूज किया है, सीमेंट यूज किया है, या उसके अलावा हमने जो कोलाइडल सिलिका किया है, या फिर और पॉलीयूरेथेन्स किया। पॉलीयूरेथेन वी कैन नॉट यूज इनटू द सिल्टी स्ट्राटा, बट वी कैन यूज दिस प्रोडक्ट, दिस एक्रिलेट। तो ये किस तरह का रहता है, ये भी सेम वही रहते हैं। दो कंपोनेंट में आता है, वन इज द कंपोनेंट ए, दूसरा जो है कंपोनेंट बी होता है, और इसका ये एक्टिवेटर्स होता है। इस एक्टिवेटर्स को हम डाल देते हैं, और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि एक दो कंपोनेंट को जो है वो मिक्स किया गया है, और उसके बाद ये मिक्सिंग हो रही है। सेम इसको भी वैसे ही लेना है 1:1, बिकॉज हमारे जो पंप होते हैं वो 1:1 वॉल्यूम होता है, इसलिए ये सारे जो प्रोडक्ट होते हैं 1:1 रहता है। अगर रेशो दोनों की चेंज होगी तो पंप हमें डिफरेंट डिजाइन रहेगा उसका। एक जो 1 रहेगा, दूसरा जो 1.2 रहेगा, 1.5 रहेगा, बिट डिफिकल्ट। तो ये जो पंप होते हैं, पिस्टन टाइप पंप होते हैं, सेम डायर होता है पिस्टन का, सेम डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए ये जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं 1:1 प्रेफर्ड किए जाते हैं। प्रेफरेबली सारे जितने प्रोडक्ट हैं 1:1 इसलिए रखे जाते हैं। तो सेम इसको ले लिया गया है। ये दो कंपोनेंट है, और अगर आप ये लेफ्ट साइड में देख रहे हो तो ये सिल्ट ली हुई है, जस्ट लूज, आपको दिखाने के लिए कि किस तरह का हो सकता है। तो इस ये सेम पानी की तरह होता है। आप ये देख रहे हो कोई इंजेक्शन नहीं किया है, कुछ नहीं है, जस्ट उसको पोर कर दिया उस सिल्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ये इसके अंदर जो चली जाती है, और 1 से 9 मिनट के बीच में क्योर हो जाता है। जो पहले वाला हम प्रोडक्ट देखते थे 14, 15 से 17 मिनट लग जाते हैं, ये 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के अंदर जो है सेट हो जाता है। एंड वी कैन अचीव दी स्ट्रेंथ ऑफ 3 to 5 MPa सिल्ट के अंदर, इमीडिएट स्ट्रेंथ। तो ये वाले प्रोडक्ट हमारे डैम्स में अंदर यूज करते हैं, हम लोग कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं रिपेयर करने के लिए। ये हुआ था एक्रिलेट। ये जस्ट वीडियो दिखाने से एकदम क्लियर हो जाता है किस तरह के ये प्रोडक्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन you can please write down to the CBIP, and then we can try to answer those question and answers. Thank you, sir, for making an excellent detailed presentation. May I request to the participants, if they have any question, they may ask directly right now. Hello. Yes, sir. Hello. 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 I am speaking from Jabalpur. I am speaking from Jabalpur. Sir, I have one question. Sir, please please tell me, sir, what would happen if the ground pressure is greater than the tensile strength of the soil? What would happen, sir, if the grouting pressure is greater than the tensile strength of soil or rock which are being grouted? It's difficult for me to answer, because we people are generally doing the grouting at the sites, and what these are the technical parameters which you have to be discussed with your design team, or anybody of this session. Anybody can answer this question? Hello. Yes, please. Hello. Hello. ये हेलो, हाँ सर, बोल रहा हूँ। ये आपने लगन वैल्यू के बारे में बताया है, 3 होना चाहिए उसकी, अचीव करते हैं।
जी लेकिन यदि वो 50 to 100 है, मान लो लेगन वैल्यू, तो हाँ क्या वहां डैम बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? क्या ये अपना जो ग्राउट काम उसमें सक्सेस रहता है? हाँ सर, उसके अंदर हमारे पास वर्ल्ड वाइड इस तरह के हैं जहाँ पे ग्राउट जो किया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, सैंड को यूज करना शुरू कर देते हैं। उसमें जो है जो ग्राउट के साथ साथ जो है सैंड भरा जाता है, क्योंकि वो जो एरिया है सैंड के साथ भरने का मतलब ये है कि हमने जो स्ट्रेंथ है उसकी ज्यादा कर दिया। जो प्योर ग्राउट रहेगा 1:1 का, उसकी जो 12 MP के करीब स्ट्रेंथ बनती है, ओके, उसको जो स्ट्रेंथ को सैंड के साथ अगर भरोगे तो वाइट्स को इजिली भर दोगे और वो जो है ज्यादा वेट ले सकता है। सर थैंक्स आपको इसके लिए बोलना चाहूंगा कि आपकी जो लैंग्वेज रही सर, वो हम लोगों को पूरी अप्रोच पर रही है और एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. जी, पर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा यू कैन राइट डाउन मी, तो मैं ट्राई करूंगा कि उनका मैं कुछ आंसर आपको दे सकूं। For any further question, if the Yeah. participants have, they may write to us. We will arrange respective answers from the speaker and will get back to you over the email. सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत केयरफुली उन्होंने बहुत ध्यान से सुना है और सुनने के लिए उन सबका धन्यवाद। आपको भी Hello, धन्यवाद सर। hello, जी sir. Hello, hello, हाँ जी जी hello. यस सर, वी कैन हियर यू। ओके कल्पना, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you for your time and thank you for the wonderful presentation. We will now take a break and we will reassemble at 1500 hours. Thank you to all the participants. We'll see you. थैंक्स सर, थैंक्स सर। Thank you. Thank you, sir. Okay.